Have you ever thought about what it would be like to own your life? Well, this is what I think it means to own your life. From the 24 hours a day, when you subtract out the sleeping time, commuting time, working time, and the things that you have to do each and every day of your life, most people don't have more than 1 or 2 hours a day to do what they would like to do. And then would they have the money to do it? We have discovered a way person can learn how to own their life by building a home-based business. And we have a system for doing it that is so simple, anybody can do it. It doesn't require any selling. And the best part is it won't take much of your time. If you think you're interested, I can send you some information. So let's do the second part of the last chapter, which we did yesterday. So the part which we do today is system. कल हमने बात की थी what this system is all about, how does it give us the kickstart. We also talked about two types of people. One is sales type and the other is non-sales type. How big is the number of the sales type people and how big is the number of the non-sales type people? How are sales type people not really successful in multi-level marketing, and why the non-sales type people are always successful in network marketing business? We understood the difference yesterday. So we covered most of the things yesterday about how they differentiate with one another. This is a duplication business. So in order to duplicate ourselves, we need to be teachers also. So we sponsor, that is take responsibility, be committed to teach, and then learn how to teach people how to do the same things which we done. A sales type person will have challenge in that. We found it. And it's a very easy duplication system that we learn from the book that is our tool, and understand multi-level marketing. Once we understand multi-level marketing, we get involved in it. And once we get involved in it, that's how when this business starts kicking in and we start making money. So these were the things which we had understood, and because that was a lengthy thing, so we had to split it into two parts. So what is this system? How does this system work and how to apply it? That's what we will do today. कल वाली बात से काफ़ी कुछ समझ आ गया था कि कौन से लोग इसमें कामयाब होते हैं और कैसे कामयाब होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, और कामयाब होने के लिए उन्हीं स्किल्स को अप्लाई करना है, टीचिंग को, मल्टीप्लिकेशन को, नॉट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। और एक सेल्समैन की तरह हमें बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करते हैं और उन्हीं से बात करते हैं, बजाय इसके कि 40-45 साल हम काम करें, पैसा जुटाएं। हम 2-3 सालों में अपने कुछ फ्रेंड्स को, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प करके उन्हें यही काम सिखा के हम अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम खड़ी कर सकते हैं। So in order to make something simple, there has to be a system, and the system has to be simple to learn then teach. So जो system है बहुत ही आसान है, 3 step system है और इसको 3 steps में बांटा हुआ है। अगर हम आमतौर पर और ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों से या वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों से पूछें कि कितनी देर लगती है ट्रेनिंग में, कब तक हमें नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ जाती है, तो उसमें 1 दिन या 2 दिन, 1 महीना या 2 महीने नहीं, महीनों लग जाते हैं सीखने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ रियलिटी, बिकॉज सब कुछ पहली बार समझ नहीं आता है, इसको टाइम लगता है। अब जो नए लोग स्पॉन्सर होते हैं वो कभी भी कोशिश करने पे भी किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पाते हैं, या कोशिश करते भी हैं तब भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो जल्दी ही बिजनेस छोड़ के भाग जाते हैं और बोलते हैं कि ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, बिकॉज उनको किसी ने ये सिखाया नहीं है कि वो क्या
उन्हें क्या करना है, व्हाट दे कैन डू, ये किसी ने नहीं सिखाया है। अब ये सिस्टम जो है 3 स्टेप, हम ये तीन चीजें हैं जो हमें करनी है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एंड एवरीबडी कैन डू, 3 स्टेप्स। अब जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, तो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिस कंपनी को भी उन्होंने ज्वाइन किया है, वो अपनी प्रोडक्ट को हॉट प्रोडक्ट बताते हैं कि हमारी व्हीकल जो है द हॉटेस्ट व्हीकल है, सबसे दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी हमारी है, इट इज द हॉटेस्ट व्हीकल दैट वी हैव। सो एवरीबडी बोस्ट्स अबाउट देयर कंपनी, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। अब ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की देखें, उसको करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। उसमें वो प्रोडक्ट के बारे में भी बताते हैं, कंपनी व्हीकल के बारे में बताते हैं, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं, सारा कुछ वेरवा उसका 1-1.5 घंटे में कंप्लीट किया जाता है ट्रेडिशनली। सो इट टेक्स 1.5 आवर्स एक बारी। अगर वो उस प्रेजेंटेशन देखने के बाद किसी को वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो ना बोल देता है, शो नहीं करता है, तो यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन। इसीलिए जो बर्नआउट है उसमें ज्यादा होता है। अब लोग जो एक्साइटेड हो जाता है आदमी, वो देखता है कि यार बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट के बारे में देखा, सुना, कंपनी के बारे में सुना, उसके क्रेडेंशियल सुने, और मार्केटिंग प्लान बहुत एक्साइटिंग लगता है, तो वो क्या करेगा, आदमी मजबूर है। उसे समझ आ गया कि लोगों को लाना है, लोगों को स्पॉन्सर करना है, और प्रोडक्ट है जो बिकता है, क्योंकि जितने लोग मैं देख रहा हूँ, इतनी भीड़ जो लोगों की है, ये सब लोग प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, इसीलिए आए हैं। तब वो एक्साइटेड होके जाके लोगों से बात करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लोगों से बात करता है, वहीं पर उसका फेलियर स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज जैसे ही लोगों को प्रोडक्ट, कंपनी या मार्केटिंग प्लान के बारे में पता लगता है, ये हॉट है व्हीकल, बस वो जाकर लग जाते हैं लोगों को बताने। और जब लोगों को बुलाते हैं, लोग नहीं आते हैं, या लोगों से मिलने जाते हैं, लोग बात नहीं सुनते हैं या भागने लग जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, शो डाउन करते हैं, so they get burned and they can't build the business because they do not know how to drive this vehicle called multi-level marketing. So multi-level marketing को पहले सीखना होगा कि इसको चलाना कैसे है, how to drive it first. That is the first thing, so that हमें समझ आ जाए, we understand कि multi-level marketing होती क्या है। अब अगर आपके पास कोई महंगी गाड़ी है, चाहे वो कोई भी गाड़ी है, मर्सिडीज है, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, आपका कोई दोस्त है, वो कहता है कि मैं आपकी गाड़ी चलाना चाहता हूँ, और उसे ड्राइविंग नहीं आती है, तो हम कभी भी अपनी गाड़ी उनको नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, रिलेटिव क्यों ना हो। अगर हमें पता है कि उनको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो हम अपनी एक्सपेंसिव गाड़ी उनको नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें अभी ड्राइव करना नहीं आता है। जिसको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती, वो महंगी गाड़ी को भी खराब करेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट के बारे में बताओ क्या है, टेल अस व्हाट इज द प्रोडक्ट। और जैसे ही आपने ये बात बताई उनको कि प्रोडक्ट क्या है, जैसे ही मेंशन किया, उनको पता लग जाएगा, उनको ऐसा महसूस होगा कि अब ये कुछ बेचेगा। पहले खुद ही पूछेंगे प्रोडक्ट क्या है, फिर खुद ही उनके दिमाग में डर बैठ जाएगा कि अब ये बेचेगा इसको, या मुझे कहेगा जाके कहीं बेचने में। तो इसीलिए हमें अपनी जो अप्रोच है, ओन योर लाइफ अप्रोच, उसे ही आगे रखना है, ताकि हम राइट चीज राइट समय पर उनको बताने वाले हो सकें, और कंपनी, प्रोडक्ट और कंपनसेशन प्लान्स के बारे में बात ना करें, ताकि हम सही चीज बताएं उनको, वो है लाइफस्टाइल। कैसे आप अपनी जिंदगी में कुछ पा सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एक एनालॉजी और है कि अगर हम प्रोडक्ट, कंपनी और मार्केटिंग प्लान के साथ लोगों के साथ बात करेंगे, वो सेम है जैसे हम किसी कार को चलाना है, लेकिन हम कहते हैं पहले इसका बोनट खोलो, उसमें से इंजन है, इंजन बाहर निकालो, इंजन का अलग अलग हर पार्ट को अलग अलग करो, फिर उसको जोड़ो, जोड़ने के बाद इंजन स्टार्ट करो, फिर गाड़ी चलाओ। ये जब हम प्रोडक्ट, कंपनी या मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे, तो ये सारी नॉलेज हमें चाहिए होगी, जैसे कि हम इंजन को खोल के बांध के फिर स्टार्ट करेंगे। हमारे सिस्टम में क्या है, चाबी दो, उसको ड्राइव करना आता है, चाबी दे दो, स्टार्ट करेगा और ड्राइव करके चला जाएगा। ये डिफरेंस है सेकंड अप्रोच में। देयर आर दो अप्रोचेस हैं, हैंडिंग द कीज, पहला पुटिंग बैक द इंजन, असेंबलिंग द इंजन अगेन। सो दो अप्रोचेस हैं। पहली में हमें सब कुछ
पता होना चाहिए प्रोडक्ट, कंपनी और मार्केटिंग प्लान के बारे में। दूसरे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कल क्लियर किया था सेकंड सेशन में कि हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 3 स्टेप करने आने चाहिए। वो भी अगर हम खुद ना करें तब भी चल जाएगा। सीधा ही प्रीफेस पढ़वा दें किसी को, पढ़ के वो कहेगा यार इन्फॉर्मेशन कहाँ है, वही किताब उसको दे दें और उसको बोलना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, दैट्स इट। तो हमारा काम सारे टूल्स कर लेंगे। तीसरा काम है अपलाइन से बात करनी, वो भी आपका टूल है, आप उसके साथ बात करवा सकते हैं। जब वो हो जाएगा, स्पॉन्सर होने के लिए कहेगा तो व्हाट्सएप में डालेंगे, वो अगला टूल है। ज़ूम कॉल में आएगा, वो उससे अगला टूल है। लोगों से बातचीत करेगा, 3 वे कॉल्स होंगी, वो सारे टूल्स हैं। वो धीरे-धीरे टूल्स ऐड ऑन होते चले जाएंगे और टूल्स के साथ ही लोग एक्साइटेड रहेंगे, इन्वॉल्व होंगे और अपग्रेड होंगे। अब 2 रीज़न है लोग एमएलएम छोड़ जाते हैं। पहला कि उन्होंने कोई पैसा नहीं बनाया होता उसमें से, और दूसरा उन्होंने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करके नहीं देखा, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रोडक्ट का। इसी वजह से लोग एमएलएम को छोड़ जाते हैं। अगर हम किसी को ये दिखा सकें या 2 दिन में, पहले 1 या 2 दिन में या हफ्ते में ये दिखा सकें कि आप लोगों को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हो। भाई दिखाना उनको है सिस्टम, स्पॉन्सर चाहे हम उनके लिए करके दें, लेकिन होगा उसी सिस्टम के साथ। जैसे मैंने कल विनय से कहा था कि मैंने विनय को स्पॉन्सर नहीं किया है, सिस्टम ने विनय को स्पॉन्सर किया। विनय ने किताब पढ़ने के बाद एमएलएम को समझा और एमएलएम को फिर हाँ करी। पहले तो विनय ने कहा था मैं तो एमएलएम करना ही नहीं चाहता सर। फिर उसके बाद उनकी कॉल आई कि मेरे को किताब दोबारा भेजो। किताब ने उनको स्पॉन्सर किया। सो वो किताब सिस्टम है। हम 1-2 दिन में उनको सिखा सकते हैं कि हम भाई ये 3 स्टेप करते हैं, ये लिखे हुए हैं, ऐसे ही करते हैं। तो जब वो आप करके दिखा सकते हो किसी को, तो उनके पास कुछ इनकम आएगी। जब कुछ लोग स्पॉन्सर होंगे तो थोड़ी-सी इनकम आएगी। इनकम के साथ एक्साइटमेंट बढ़ेगी। एक्साइटमेंट के साथ उनका जो है थोड़ी देर और टिके रहेंगे बिज़नेस में, उनको रहने का कारण मिल जाएगा। सो बेसिक फिलॉसफी हमारे सिस्टम की ये है कि लोगों को ये दिखाओ कि एमएलएम ड्राइव कैसे की जाती है। ये बेसिक फिलॉसफी है। मेक अ फ्रेंड एंड मीट देयर फ्रेंड्स एंड देन टीच देम हाउ टू ड्राइव। ये ड्राइव करना हम गाड़ी दिखाने से पहले करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। इसीलिए हम लोगों को गाड़ी पहले नहीं दिखाते हैं। कभी भी गाड़ी तब तक नहीं दिखानी जब तक उन्हें ड्राइव करना नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्ट्स कंपनी या मार्केटिंग प्लान देखेंगे, जैसे ही देखेंगे वैसे ही वो जाके लोगों के साथ बात करना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट्स कंपनी और कंपनसेशन प्लान की, और एक्सीडेंट करवा लेंगे, बुरी तरह से टक्कर खा के बैठ जाएंगे या गाड़ी तोड़वा लेंगे या अपना आप नुकसान करवा लेंगे। इसीलिए हम प्रोडक्ट्स कंपनी और कंपनसेशन प्लान की बात नहीं करते हैं कि भाई पहले हम ड्राइविंग सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट कंपनी और कंपनसेशन प्लान की अप्रोच के साथ लोगों के साथ बात की, तो ऑब्वियसली उनको ये 3 चीजें दिखेंगी और वो तीनों हॉट लगेंगी उनको, और धड़ाधड़ जाके वो लोगों से बात करेंगे और लोग भाग जाएंगे, क्योंकि ना उनको चलानी आती है गाड़ी, ना उनको सिखा पाएंगे। सो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो 2 तरीके हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिस्टम में। एक है पर्सन टू पर्सन अप्रोच, वन ऑन वन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली वार्म मार्केट में होता है बिजनेस, इसलिए वन ऑन वन अप्रोच रहती है। ग्रुप में नहीं करते हम, एक से ज्यादा आदमी नहीं होना चाहिए, एक ही आदमी एट ए टाइम, वन ऑन वन, बिकॉज वार्म मार्केट है। तो ये अप्रोच अप्लाई कब करनी है, ये 45 सेकंड प्रेजेंटेशन कब करनी है? जब हम उनसे मिले हैं, चाहे कॉफी शॉप में, चाहे रेस्टोरेंट में, खाने के लिए, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कहीं भी, जब एंड में, लास्ट में, जब बिल दे दिया, बाहर जाने लगे हैं, उस वक्त हम उनसे ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले करोगे तो वो सवाल पूछेंगे और उन सवालों के अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। सो हम चाहेंगे ही नहीं कि वो सवाल पूछे, हम चाहेंगे कि वो एक ही सवाल पूछें कि इन्फॉर्मेशन कहाँ है, और हम उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि वो बिजनेस सारा वहां से समझ सके। सो सीधा पूछना है कि भाई या विनय, लगता है कि तू मेरी हेल्प कर सकता है, तू मेरी मदद कर सकता है, तो तेरे को कोई ऐसा दोस्त जानता है जो ट्रैवल करना पसंद करता हो, वेकेशन पे जाना पसंद करता हो? और बहुत कम लोग होंगे जो आपको, कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा यार ट्रैवल करना पसंद नहीं करता या वेकेशन पे जाना नहीं पसंद करता। तो हम बोलेंगे हाँ बहुत सारे जानते हैं, या बोल देगा नहीं, जो भी बोलेगा। तो उसको बोलना है कि भाई विनय, 3 चीजें चाहिए हमें ट्रैवल करने के लिए, वेकेशन पे जाने के लिए। हमें टाइम चाहिए, हमें पैसा चाहिए और हमें एक अच्छी सेहत चाहिए। ये तीनों चीजें इकट्ठी हो तो हम वेकेशन का, ट्रैवल का मजा ले सकते हैं। अब मैं तुझे अगर मैं दिखा सकूं तुझे कि ये तीनों चीजें कैसे आ सकती हैं, अगर ये मैं तुझे दिखा सकूं ये तीनों चीजें कैसे ली जा सकती हैं, टाइम, पैसा और हेल्थ,
तो क्या तू इंटरेस्टेड होगा? अब पहले तो हमने थर्ड पार्टी उनको बोला कि कोई तुझे जानता है, अब यहाँ पर बोल दिया कि मैं तुझे अगर दिखा दूं कि ये तीनों चीजें कैसे ली जा सकती हैं, तो क्या तू इंटरेस्टेड होगा? सो इट इज फ्लिपिंग फ्रॉम थर्ड पर्सन टू फर्स्ट पर्सन अप्रोच। तो अक्सर 100% लोग कहेंगे हाँ यार, व्हाई नॉट, कोई गलत बात थोड़ा है, मुझे भी दिखा कैसे आता है ये। सो दिस इज हाउ पर्सन टू पर्सन अप्रोच हैपेंस। फिर आती है टेलीफोन अप्रोच। टेलीफोन अप्रोच में जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे वो नजदीक है, चाहे वो कनाडा रहता है, चाहे इटली रहता है, चाहे वो पंजाब में रहता है, हरियाणा में रहता है, कहीं भी, बातें करते करते जब एंड होने लगा तो उसको पूछते हो कि हैव यू एवर, विनय, हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट इट वुड बी लाइक टू ओन योर लाइफ? तो वहां पर काफी देर साइलेंस रहेगी, बीच में चुप्पी सी रहेगी। फिर उसके बाद बोलोगे दिस इज, आई थिंक दिस इज व्हाट आई मीन बाय ओन योर लाइफ, from the 24 hours a day, when you subtract out sleeping time, commuting time, working time, and the things that you have to do each and every day of your life, most people don't have more than 1 or 2 hours a day to do what they would like to do. And then will they have the money to do it? And we have discovered a way a person can learn how to own their life by building a home-based business. And we have a system for doing it that is so simple, anybody can do it. It doesn't require any selling. And the best part is, it won't take much of your time. If you're interested, I can give you some information. वो कहता है वाह गुड, सेंड मी द इन्फॉर्मेशन अक्रॉस। उसको आप ईमेल कर दीजिए अगर आपके पास पीडीएफ है, या कोरियर कर दीजिए, व्हाटएवर। सो नाउ यू हैव लोन द बुक। आपने उनसे 45 कर दी और उसके बाद बुक लोन कर दी, तो इसमें हमने अपना टाइम बचा लिया। वहीं पे पूछा, वो कहता हाँ इंटरेस्टेड, टाइम बच गया। फिर उसके बाद उनका भी टाइम बच गया, क्यों? अब उनका टाइम नहीं लगा तो उनके पास कोई बहाना नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सो सबसे बड़ा बहाना नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही है कि लोग बोलेंगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, कर तो मैं लेता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अब ये 45 सेकंड्स में ही हो जाएगा, 1 मिनट में या 2 मिनट में हो जाएगी बात, इधर या उधर। तो वो बोलेंगे ठीक है, फैंटास्टिक, सो यू लोन द बुक। एंड फिर उनको बोलना कि इसमें से सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं या 4 प्रेजेंटेशन ही पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, और उतने में तेरे को काफी कुछ समझ आ जाएगा, फिर हम बात करते हैं। वो भी उनका टाइम सेव हो गया कि पूरी किताब नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा ही पढ़ना। अब जब वो किताब पढ़ेंगे तो दे विल नाउ, 3 चीजें हो जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि वो कुछ चाहते हैं जिंदगी में, यू नो, दे वांट समथिंग, दे वांट टू ओन देयर लाइफ, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता लग जाएगी कि नाउ दैट दे नो हाउ टू, यू नो, दे अंडरस्टैंड एमएलएम। जब कोई 10 प्रेजेंटेशन पढ़ लेगा, पूरी किताब पढ़ लेगा, तो उसको पता लग जाएगा कि एमएलएम क्या है एक्चुअली में। हम एमएलएम क्या है, ये बेचने का काम नहीं है, दरवाजे खड़काने का काम नहीं है, लोगों के पीछे भागने का काम नहीं है, तो स्पॉन्सरिंग और टीचिंग का काम है। और उसके लिए भी एक सिस्टम है, ड्राइव करना, है ना। अब उनको ड्राइव करना भी आ जाएगा। 2 into 2 is equal to 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, and on and on and on। अब ड्राइव करना भी उनको आ गया, उनको अंडरस्टैंड भी कर गए एमएलएम क्या है। अब उन्हें, आपको ये भी पता है कि उनको कुछ चाहिए। सो व्हेन दे रीड इट, दे अंडरस्टैंड इट, एंड उनको ये भी पता लग जाएगा कि 3-4 घंटे लगाकर मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो बंदा किताब से ही पढ़ के सीख लेगा। सो अब उनके पास चॉइस है, या तो वो पढ़ के किताब से सीख ले कि ये कैसे होता है, दूसरा है ये है कि 3-4 घंटे लगा के सीख लें, और या तो किताब पढ़ा के किसी को सिखा दें, या फिर 3-4 घंटे लगा के किसी को सिखा दें। सो चॉइस उनकी है। तो वो चूज करते हैं थोड़ा काम ना, किताब पढ़ लेंगे, जब भी टाइम होगा पढ़ लेंगे, जब तैयार होंगे उसके बाद अपलाइन के साथ बात कर देंगे। सो जब हम ये 3 स्टेप करते हैं तो इसके अलग अलग तरीके हैं। हम जैसे अपने उसमें ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं कि हम सिंपली 45 सेकंड प्रेजेंटेशन या खुद करते हैं या अपलाइन से करवाते हैं, थर्ड पार्टी करा देते हैं या 3-वे कॉल करा देते हैं। वो आप 45 सेकंड प्रेजेंटेशन करते हो, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो हम उन्हें आमतौर पर लॉकडाउन पीरियड में पीडीएफ भेज रहे हैं, पीडीएफ भेजा, और जब उसका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया, जूम कॉल में आने लग गया, तो उनको अब लॉकडाउन खुल गया तो अमेजोन से वो अपनी पूरी की पूरी किताब भी मंगा सकते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप है कि वो अपलाइन के साथ बात करके कंपनी, प्रोडक्ट और सारा कुछ जान लेगा। अगर उनको और जानकारी प्रोडक्ट कंपनी की चाहिए होगी तो हम उनको इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, जो हमारे पास यूट्यूब के लिंक है प्रोडक्ट के, कंपनी के, और टेस्टिमनीज हैं, वो सारी उनको भेज देंगे। दैट्स इट। सो 3 स्टेप टूल्स के साथ ही हो जाएंगे, हमें कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब एक वेबसाइट का एग्जांपल वहां पे मैंने आज इसीलिए वो दोनों अपने लिंक्स भेजे थे वेबसाइट के। अगर हमारे पास वेबसाइट हो वैसी, तो उसके साथ हम चलते फिरते ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ बात कर सकते हैं। आप पूछ ही लेता आदमी, तुसी की कर दें, तुसी की कर दें, तो आप बोल सकते हो कि ये मेरा वेबसाइट है, जाके देख लेना मैं क्या करता हूँ। एंड वैसे जाते जाते जब बिछड़ेंगे तब कुछ लोग टाइम चाहिए, पैसा चाहिए और हेल्थ चाहिए। अगर तीनों चीजें आपको मिल जाएं तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? ओके यस, गो चेक माय वेबसाइट, you'll find a free book there, you'll find a survey form there, and you can lead them there. लेकिन जो कोल्ड कांटेक्ट है, कोल्ड कांटेक्टिंग में बस एक चीज का ध्यान रखना कि पहले कनेक्शन बनाना है। So you have to make a connection first. That is why immediately जाते ही वो शुरू नहीं कर देनी है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। पहले उसके साथ कनेक्शन बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है, देन उसके बाद ये सिस्टम आगे काम करना। सो द सिस्टम इज वेरी सिंपल, 3 स्टेप। जो आपको नहीं करने हैं वो भी टूल्स ने करना है। पर एक बात हमें समझ आ जानी चाहिए कि इन 3 स्टेप्स के अलावा कोई किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा इस सिस्टम में। बाहर तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, कभी कोई अप्रोच लगा दी, कभी कोई अप्रोच लगा दी, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि हम इसी अप्रोच के साथ अगर किसी से बात करते हैं तो ये सिस्टम ने ही भाई साहब स्पॉन्सर करने लोगों को जिसके पास कुछ करने की इच्छा होगी उसे। अगर किसी को कुछ करने की इच्छा नहीं है, वी डोंट हैव टू रन आफ्टर देम। वो हमने कल सुन लिया था कि किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो नहीं करना चाहता, डोंट वरी, गो टू समवन एल्स, आस्क देम हैव यू एवर थॉट अबाउट, यू नो। सो इसलिए जितने भी लोग आपको मिलते हैं उनको एक बार पूछ लो, पूछते जाओ, किताब पकड़ाते जाओ, वो पढ़ते जाएंगे, वापस आते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एक बार आपको 5 लोग आपके जो मिल जाएंगे जिनके साथ आपने काम करना है, फिर उनको छठे बंदे तक जाने की जरूरत नहीं है, उनको सिखाओ और उनको भी यही सिस्टम सिखाना है। सो वी डोंट हैव टू रियली वर्क हार्ड इन दिस बिजनेस, वी हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं डालना है। सिंपल फिलॉसफी है, वी लुक फॉर समवन हु वांट्स टू डू समथिंग इन लाइफ, एंड अदर सिंपल फिलॉसफी जब वो आ जाता है तो शो देम हाउ टू ड्राइव, दैट्स इट। 2 चीजें अगर उनको ये पता लग गया कि मेरे को जिंदगी में कुछ चाहिए और मुझे वो जो मिल रही है व्हीकल, उससे मैं अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता हूँ जहां मैंने अपनी जिंदगी में पहुंचना था, और उसको अगर मुझे 2 या 3 या 4 या 5 साल भी लग जाते हैं और रेजिडुअल इनकम आती है, तब भी नो प्रॉब्लम। मैं अपनी दिन की जॉब जो है उसको मैं करता रहूंगा, दिन का बिजनेस है, प्रोफेशन है, मैं उसको करता रहूंगा, और फिर उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगा, व्हीकल चलानी शुरू कर दूंगा जब मेरे को ये चलानी आ जाएगी। तो ऑब्वियसली जब हमें गाड़ी चलानी आ गई, तो वो डिस्टेंस जो है जहां पर हम जाना चाहते हैं वहां तक अगर ये गाड़ी प्रॉमिस करती है ले जानी, तो सिर्फ चलाना ही है, ठीक है ना। किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर हमारे पास गाड़ी है जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है, तो उसको चलाना ही सीखना है। वेरी सिंपल। अगर हमने यहाँ से बेंगलोर जाना है तो जो गाड़ी हमें वहां तक आसानी से ले जा सकती है उसको चलाना सीखना है, बस। फिर उसको चलाते जाना, रास्ते में जो जो काम है उसमें करने वाले वो करते रहेंगे। तेल भरवा लिया, चला लिया, तेल भरवा लिया, रेस्ट कर लिया, तेल भरवा लिया, चला लिया। सेम ही है, गाड़ी होनी चाहिए, डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, ताकि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट नहीं ना, वो आगरा पहुंचने से पहले पटाखा भेजे। वो सारी चीजें हमने समझ के चलनी है। वेरी सिंपल, नॉट अ टफ थिंग। अगर हमारे पास इस सेशन के बाद टाइम बचेगा तो वी विल टॉक समथिंग मोर जो हमने कल सेकंड सेशन में की थी। आई वुड वांट टू रिव्यू इट। ओवर टू यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओवर टू यू। ऑसम भाजी, ऑसम, मजा आ गया। एनर्जी बहुत ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। मजा आ गया। थैंक यू सर। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। फुल ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया भाई। वेल डन पाजी, वेल डन। थैंक यू बदे भाजी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कमल, थैंक यू गुरमर। सो लेट्स शेयर आवर व्यूज एंड लर्निंग्स, ताकि फिर हम अगला सेशन भी कर सकें, उसमें मैं कल वाली बातें भी कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू सो मच जी भाजी। आई थिंक अमित नहीं है, आई विल स्टार्ट विद फ्रॉम मी। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਕ ਅਵੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ when we say ਕਿ we work with the system ਜਿਸ ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਸਸ ਜੋ ਆਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਚ ਬੰਦਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ
ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਾਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਵਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਉਸ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਹਾਰਡਲੀ 2-3 ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਮਝਾਮ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਓਨ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟੇਕ ਟੂਡੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਟੀਚ ਯੂ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੈਮਰਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਮਿਤ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ Thank you, Paji. It was a wonderful presentation and you explained it very well. ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਦੈਟ एवरीवन ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ एवरीवन ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਡੂ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर मुझे निकलना है मैं पहले बोल के चला जाऊं क्या मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम sure okay so I think the presentation is the clear message कि हम कर क्या रहे हैं और हम WhatsApp पे भी वही कर रहे हैं और जो भी हम यहाँ पर हैं उसने एक्सपीरियंस कर ही लिया है कि दिस इज ऑल वी आर डूइंग और ये जब प्रेजेंटेशन को बार बार रीइंफोर्स करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें यही करते रहना है इसी को कंटिन्यू करना है हमें ऐसा नहीं कि अभी तो ये कर रहे हैं कल कुछ और करेंगे हमने यही करते रहना है बार बार अपने माइंड को समझाना है क्योंकि हमारे कोई ये आदत नहीं है इस चीज को समझने की यार ऐसे भी होता है क्योंकि ये चीज हमने कभी देखी नहीं है हमने सिर्फ रिटेल ट्रेड और डायरेक्ट सेल्स को ही होते हुए देखा है हमें उसी को बिजनेस समझ लिया है लेकिन ये सिस्टम जब हम सिस्टम में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार यस दिस इज द बिजनेस दैट वी आर इनटू तो इस बहुत सिंपल है कोई भी कर सकता है डुप्लीकेट हो सकता है और आपके पास पूरा तरीका है और आपके पास एक किताब है उस किताब को आपने पढ़ना है और सीखना है समझना है और सिखाना है और उसके लिए भी आपको बहुत जैसे आपने बताया कि टेंशन नहीं लेनी है सिर पे कुछ बोझ नहीं लगाना कि कुछ होगा करेगा क्या होगा यहाँ पर सिंपल सी बात है आपको सिस्टम के साथ रहना है बिल्कुल प्रेजेंट रहना है और उसमें सीख भी आप जाओगे जब आप मान लीजिए आप कंसिस्टेंटली जूम कॉल सेंड कर रहे हो व्हाट्सएप में एंगेज कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सीख भी गए हो और उसके बाद उस चैप्टर्स में जो भी लिखा है जब जूम कॉल्स में लिखा है कि हमें जो चीजें करनी है हेल्थ कार्ड में चीजें बताई गई है हमें देखी है उसको हमने करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम कर ही जाएंगे और ये कन्विक्शन बढ़ती जा रही है हर जूम कॉल्स में बढ़ती जा रही है सिस्टम के ऊपर कन्विक्शन क्योंकि हम यही कर रहे हैं जो व्हाट्सएप में है एंगेज है उनको पता चलेगा कि हम यही कर रहे हैं so thank you so much for this presentation I'm leaving right now thank you so much everyone bye ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਆਲਸੋ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਵੀ ਲੈਟ ਦ ਟੂਲਸ ਡੂ ਦ ਟਾਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MLM ਦਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਵੈਲ ਰਿਟਨ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ MLM ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ and all becomes easy. So this was my intake. Thank you. Haji Paji, thank you so much for the presentation. Again and again, system ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ system is so simple, very simple, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਐਨ ਔਸਮ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਯੂ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 3 ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 3 ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ? ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਸੁਖਚੈਨ, ਸੁਬੇਗ, ਵਿਸ਼ਾਲ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸੱਚ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਸੈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ। Sure, thank you. So great presentation sir, very informative. So ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ 4 or 5 presentations attend ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ confident feel ਹੁੰਦਾ ਲਰਨ ਕਰਕੇ। Okay, lovely, thank you so much. Thanks.
Very lovely presentation. बहुत अच्छे से you have explained everything, and this chapter really clears everything. How simple the system is that we code in 45 seconds. The system is really so simple that anyone